Welcome to Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel and today we are going to study about microbes for human welfare, that is standard 12 chapter 10, right? Microbes for human welfare. तो ये नाम सुन के थोड़ा सा शायद आपको अजीब लगे बिकॉज अभी तक हम लोग ने जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पढ़े हैं उसके वजह से हम लोग को मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, typhoid, filariasis and what not, right? Corona obviously, right now we are facing pandemic of it. तो कितने सारे डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी होते हैं which are really very useful to us, right? And these microorganisms are there in our day to day life. हम लोग ये microorganisms को हमारे day to day life में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, मेडिसिन उससे बनते हैं, हमारे घर में भी हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स यूज करते हैं. इनफैक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर एवरीवेयर, नॉट ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर हार्मफुल, येट much of them are beneficial to us. And today in this chapter, in this video, we are going to study about those beneficial microorganisms which we can apply to produce certain products or to provide any service, right? So let's start this chapter. You have studied about various different kind of organisms: bacteria, protist, fungus, lichens, viruses, etc. Right? A lot of different kind of microorganisms are there which you have studied in earlier chapters in 11th standard. We have classified them very well and some of them are really very beneficial to us, and there are various different kind of applications. So let's start with first application, that is microbes for household purpose. वो बोलते हैं ना कभी charity begin at home, understood? तो चलो household purpose से ही शुरू करते हैं. तो पहला यूज अगर हम लोग देखते हैं तो this is very well known among us, that is preparing curd, है ना, दही जमाना, preparing curd or yogurt from milk. तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है, they are called lab. In short, they are called lab because it is called lactic acid producing bacteria. तो lactic acid producing bacteria, LAB. That's how it is called lab. Understood? अब ये बैक्टीरिया क्या करता है मिल्क में? तो इट इज lactose is what they need to consume, right? And lactose is a milk sugar, as we know. तो ये बैक्टीरिया मिल्क में से लैक्टोज कंज्यूम करता है and it is producing lactic acid. Now lactic acid is dropping pH of milk. Understood? मिल्क का pH कम हो जाता है, जिसका it means milk got acidic, somewhat got acidic. अब मिल्क में दो प्रोटीन होते हैं, केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन होता है. तो इसमें से जो केजिन प्रोटीन होता है, इट इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम टू प्रोड्यूस कैल्शियम केजिनेट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एसिडिक पीएच. ठीक है, एसिडिक पीएच की वजह से कैल्शियम केजिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कैल्शियम केजिनेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग योगर्ट, जो हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, स्पून से लेके खा सकते हैं, राइट? इट इज जेली लाइक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? तो ये योगर्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम केजिनेट कॉम्प्लेक्स. Understood? Because of low pH of milk. So this is how milk is produced. This is how curd is produced. और कर्ड तो प्रोड्यूस हो गया. चलो, अब कर्ड का एडवांटेजेस भी क्या क्या है? सिर्फ यही नहीं कि हम लोग इसको खाते हैं तो हम लोग को अच्छा टेस्ट में लगता है, या बहुत सारे अलग अलग क्विजीन्स में यूज होता है, बट इट हैव सर्टेन important functions, that is it helps in aiding digestion, it helps in aiding digestion, it helps in improving our immunity. Being bacteria, it triggers our immune system, it produces response. It is initiating or it is stimulating immune response in our body. And one more thing is very important, that it is helping to gain us vitamin B12, right? So curd भी वैसे भी it is source of B12. तो being vegetarian, curd is a very important diet for those who are vegetarian, and obviously those who are vegetarian में वो लोग जो लोग vegan diet नहीं लेते, right? तो this curd is having all this kind of advantages. Understood?
मूविंग टू द नेक्स्ट इज, चलो घर में और एक चीज भी हम लोग बहुत बनाते हैं ना भाई, डोसा, इडली, ढोकला, ये सब बनाते हैं ना, दाल वड़ा गुजराती लोग का, अंडरस्टूड। तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर में बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसको फर्मेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये फर्मेंटेशन कैसे होता है? दिस फर्मेंटेशन इज अकरिंग इन अ वे दैट मम्मी लोग हमारे क्या करते हैं कि भाई बैटर बनाते हैं, अब उसमें कोई पर्टिकुलर इनोकुलम नहीं डालते। जैसे दही बनाने के लिए दूसरा एक जो दही बना हुआ है उसमें से एक चम्मच लेके दूध में डाल दिया, वो दूध ओवरनाइट रख दिया और दूसरे दिन दही बन गया। तो ये कर्ड में होता है। हम लोग जो बैटर में हम लोग के मम्मी कोई इनोकुलम ऐसे नहीं डालते, राइट? चम्मच लेके कहीं से कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं। What they are doing is they are allowing microbes which are present in the environment to contaminate our food and to ferment our food. I should say ferment, right? Not contaminate. मैं ferment बोलना चाहिए। To ferment our batter, और उसको overnight के लिए या फिर एक दिन के लिए रख देते हैं, फिर वो ferment हो जाता है। ferment होने के बाद दूसरे दिन हम लोग उसको गर्म करके डोसा, इडली या जो भी हो वो बना के खा जाते हैं, ठीक है? So this is how we are preparing food. Using bacteria or other microorganisms, what exactly they are we don't know, but हम लोग जानते हैं actually, but I don't know, right? तो ऐसे बैटर में ऐसे फर्मेंट करके हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर कुछ ट्रेडिशनल अगर देखें तो टॉडी करके एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है इन साउथ इंडिया, विच इज प्रोड्यूस्ड, I mean in which coconut or palm is used and they are fermented by microorganisms, और उसमें से टॉडी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर ऐसे कुछ फूड है ऐसे जैसे कि फिश है, सोयाबीन है, बैम्बू शूट्स है, इनको फर्मेंट किया जाता है एंड fermented bamboo shoots, fishes and soybean is been consumed, right, in different cultures. After then cheese अगर देखें तो right now we are not talking just about different kind of cultures from India, but we are talking about cultures from whole world. तो अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चीज वॉज हाउस होल्ड प्रोडक्ट, राइट? इनफैक्ट अभी भी कुछ घर में वहां पर चीज घर पे ही बनता होगा। तो दो चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो चीज बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, फेटा चीज है, शेडर चीज है, गूडा चीज होता है, राइट? डिपेंड ऑन व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिल्क, मतलब कौन सा एनिमल से मिल्क लिया गया है और चीज का टेक्सचर कैसा है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजेस आर देयर। तो हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे। वन इज कॉल्ड स्विस चीज। स्विस इसलिए बोलते हैं बिकॉज it have origin in Switzerland, that's why it is called Swiss cheese. आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि जेरी चीज के अंदर there are big holes in cheese and जेरी अंदर छुप जाता है, फिर टॉम उसको अंदर से ढूंढ के निकालता है, right? I still remember one of the scene. I grown up watching those cartoons, right? So मुझे अभी भी याद है कि जेरी और टॉम एंड जेरी में इस चीज बहुत दिखाते थे। तो that kind of cheese is called Swiss cheese. It is used by bacteria. It is produced by using bacteria, Propionibacterium shermani, right? Spelling आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख लेना, what is exact spelling of this bacteria. और फिर दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। अब ये रॉकफोर्ट चीज टेक्निकल नेम है, उसका एक्चुअल नेम है, लिटरल नेम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ब्लू चीज के नाम से जानते हैं बिकॉज यू कैन सी उसका कलर थोड़ा सा कहीं पर ब्लू स्पॉट्स, पैचेस जैसा दिख रहा है व्हाइट के बीच में। And those patches are literally Penicillium mycelium. Penicillium का mycelium है, मतलब आप जब ये चीज अगर कभी भी बाइट करोगे ना तो आप फंगस का mycelium भी बाइट करोगे। How weird it is, isn't it? लेकिन लोग खाते हैं, जो लोग को इसका टेस्ट पसंद है वो लोग को बहुत पसंद आता है इसका टेस्ट। It is really very I don't know whether it is tasty or not. मेरा प्रेफरेंस तो आप लोग मत ही पूछो, understood? तो people like this kind of cheese. It is called Roquefort cheese and it is produced by using fungus called Penicillium, understood? So and it is very stinky, but कुछ लोगों को पसंद है and it is one of the most expensive cheeses in the world, right? बहुत कुछ ऐसे चीज है जो दुनिया में बहुत expensive है. This is one of them, understood? So this is about how microorganisms can be used for different kind of household purposes. Moving to our next topic, that is microbes for industrial purpose or applications.
अंडरस्टूड। और इसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज fermented beverages or alcoholic beverages. Now, to produce this alcoholic beverages, we are using malted cereals or we are using fruit juices to produce different kind of drinks. I mean beverages, whatever you say. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ईस्ट यूज करते हैं, जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है Saccharomyces cerevisiae. साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट, अंडरस्टूड, काइंड ऑफ फंगस, kind of non-pathogenic fungus which can be used for this purpose. ये हम लोग ने मैं आपको बताना भूल गया, डिस्कस करना भूल गया, लेकिन ये हाउस होल्ड पर्पस में भी यूज होता है टू प्रोड्यूस डो, राइट। डो मतलब आटा बांध के रखते हैं ना, तो वो आटे में भी यूज होता है ईस्ट इन हाउस होल्ड पर्पस, अंडरस्टूड। टू प्रिपेयर ब्रेड, तो अगेन यूरोपियन कंट्रीज में ब्रेड घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट यू नो दैट You can prepare bread at home, right? आप लोग अभी तक तो जान गए होंगे, अगर आपके घर में ओवन है आप लोग ब्रेड घर पे बना सकते हो, केक भी घर पे बना सकते हो, right? So you are knowing about this, and it is the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, which can be called as baker's yeast, and it is used in brewery industry also. That's why it is also called as brewer's yeast, understood? तो बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, तो सारे ड्रिंक्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। तो जो नॉन डिस्टिल्ड ड्रिंक होता है उसमें अल्कोहलिक कंटेंट काफी कम होता है, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8% और 12%, नॉट 8%, 4 to 12% में होता है, जिसमें वाइन एंड बियर्स आते हैं, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट फर्मेंटेड, आई मीन डिस्टिल्ड फर्मेंटेड ड्रिंक, तो उसमें विस्की, वोडका, रम एटसेट्रा. So all this in which alcoholic content is much higher, as much as 40%, 44% or near about that, understood? तो ये सब आ जाता है distilled beverages में. तो इसमें एक ही तरीके का yeast use होता है, that is Saccharomyces cerevisiae, and this kind of different drinks are prepared. अलग-अलग मेथड होते हैं इनके, और किसी में malted cereals यूज किया जाता है, तो किसी में fruit juices यूज किया जाता है, right? So this is about fermented drinks. Next is antibiotics. So antibiotic is a Greek term जिसका meaning है against the life. Now against the life of not us, not against our life, but against microorganisms life. अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक का जब डिस्कवरी हुआ, उसका जब एप्लीकेशन हम लोग एप्लीकेशन करने लगे, मतलब when we started to use it, before that surgery was very much difficult, it was very much risky. Just because of surgery, people are in risk of dying of infection, understood? But after the invention of antibiotics is much used in surgery, and और भी बहुत सारी diseases है, leprosy है, diphtheria है, all these diseases antibiotics are being used, and there are several different type of antibiotics available in market right now, understood? तो चलो देख लेते हैं एंटीबायोटिक डिस्कवर कैसे हुआ था. So there was one scientist called Alexander Fleming. He was studying on Staphylococcus bacteria, वही बैक्टीरिया जो हमारे स्किन पे होता है, उसकी वजह से हम लोग को पिंपल्स होते हैं, right? He was studying about that bacteria, and what he found out is एक्चुअली क्या हुआ था, क्या फाउंड तो बाद में हुआ था, लेकिन एक्सीडेंटली एक चीज हो गया था, एंड दैट वाज व्हाइल ही वाज स्टडीइंग अबाउट बैक्टीरिया, ही accidentally this fungus have came in the petri dish of a culture media in which Staphylococcus bacteria was there. जब माइक्रो में जब हम लोग लैब में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का पेट्री डिश बनाते हैं, तो वी मेंटेन स्टराइल कंडीशन, ताकि हवा में से कोई ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, उसमें आ ना जाए. बट गलती होती है कभी कभी, ह्यूमन एरर्स, humans are tend to make mistakes, and so Alexander Fleming, and sometimes mistakes brings wonder, isn't it? तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हाथ में ऐसे ही कुछ लग गया गलती से. I mean, obviously he have done lot of hard work after he got this thing, but हमेशा पहला है ना एक्सीडेंटली होता है, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंटली बहुत कुछ हम लोग को मिल जाता है. एंड सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गॉट दिस. तो ऐसा हुआ कि कहीं से पेनिसिलियम नोटेडम आके, इट इज अ काइंड ऑफ फंगस, वो फंगस आके कहीं पर ये पेट्री डिश में आ गया. नाउ बिकॉज दिस फंगस हैव एंटर्ड, उसका कुछ माइसीलियम डेवलप हुआ, तो उसमें से कुछ केमिकल प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में एक जोन ऑफ क्लियरेंस देखने को मिला in that petri dish,
अंडरस्टूड। और वो जोन ऑफ क्लियरेंस के बाहर पे बैक्टीरिया के कॉलोनीज थे, लेकिन नॉट इनसाइड दी जोन ऑफ क्लियरेंस, अंडरस्टूड। तो ये चीज से कुछ अजीब लगा कि भाई हाउ दिस माइसीलियम is not letting any other microorganisms to grow in its surrounding. Later, Alexander Fleming have studied about this chemical. He have extracted, purified this chemical, and he have studied about this, and he found out that there is certain chemicals which are produced by this fungus, which he called as penicillin afterward. तो ये penicillin एंटीबायोटिक है जिसने बैक्टीरिया को वहां पर ग्रो नहीं होने दिया, अंडरस्टूड। उसके बाद में और दो साइंटिस्ट आए, माइकल फ्लोरे एंड अर्न्स्ट चेन, राइट। ये दोनों ने ये एंटीबायोटिक में कुछ चेंजेस लाए केमिकली, सो दैट दिस एंटीबायोटिक कैन बी यूज्ड फॉर अस, अंडरस्टूड। और जब ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने लगा तो मतलब इनका यूज, इसका ये केमिकल का यूज कुछ हम लोग ऐसा करने लगे कि नाउ इट इज अनअवॉइडेबल, नाउ इट इज अनइमेजिनेबल फॉर अस to not use this kind of chemicals, right, in our day-to-day purpose. जब भी हमें अभी तो चोट भी लगती है तो कभी कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, अभी तो ऐसा हो गया एंटीबायोटिक्स में। तो now we cannot imagine our life without antibiotics, right? तो पहले तो ये सब होता था, I mean that is how antibiotics was discovered by these three scientists, and they got Nobel Prize for that because it is really a breakthrough in medicines, understood? So they got Nobel Prize, and that is how penicillin is discovered and they are used, right? So coming to the next one is, next industrial purpose is that is some organic acids, chemicals and some bioactive molecules, right? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पर 4 ऑर्गेनिक एसिड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिटिक एसिड, वही एसिटिक एसिड जिसकी स्मेल बहुत खराब होती है, सरदर्द होने लगता है। लैब में ना कभी एसिटिक एसिड का ढक्कन खुला रह जाता है ना, तो सब लोग का सरदर्द होने लगता है। वी हैव फेल्ट दैट, राइट। तो दिस इज एसिटिक एसिड, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। जो लोग ने प्रोटीन वाला टेस्ट अगर आपको मालूम हो, याद हो, तो उसमें एक टेस्ट आता था जिसमें हम लोग ये यूज करते थे, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। और किसी से कोई ना कोई स्टूडेंट तो ये खुला रख ही देता है और फिर पूरे लैब को भुगतना पड़ता है। एवरी ईयर दिस इज अकरिंग, एवरी ईयर। तो यही एसिटिक एसिड को जब बनाना होता है, और विनेगर में भी एसिटिक एसिड यूज होता है, राइट। इनफैक्ट विनेगर इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम भी एसिडोबैक्टर एसिटाई। एकदम सिंपल, भाई ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। एसिडोबैक्टर एसिटाई is a bacteria which is used to produce acetic acid. तो कितना सिंपल जेनेरिक नेम एंड कितना सिंपल स्पीशीज नेम दिया है, वेरी गुड। भाई मैं ये साइंटिस्ट, मुझे जिसने भी इसका नामकरण किया है ना, मुझे मेरा फेवरेट हो गया है, वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट। ही इज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉब्लम, इजंट इट? तो चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। द सेम सिट्रिक एसिड which is used which is there in citrus fruit like lemon, oranges, अंडरस्टूड। और सिट्रिक एसिड हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई कहाँ यूज करते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड, तो ये मार्केट में ना मिलता है, लींबू का फूल नाम से मिलता है, ठीक है। गुजराती में लींबू ना फूल बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुजराती में लींबू ना फूल बोलते हैं। तो कुछ सॉल्ट जैसा दे देते हैं, लींबू ना फूल बोलेंगे तो फूल वूल नहीं देते हैं मार्केट में से, प्रोविजन स्टोर वाले वो कुछ सॉल्ट जैसा कुछ दे देगा आपको। दैट इज एक्चुअली सिट्रिक एसिड, पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ सिट्रिक एसिड। उसका टेस्ट बहुत सावर होता है, राइट। इट इज अ प्योरिफाइड सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं दैट इज एस्परजिलस, नॉट बैक्टीरिया, फंगस, इट इज एस्परजिलस नाइजर। वही बैक्टीरिया जिसके स्पोर्स हम लोग को ऑनियन के ऊपर ब्लैक कलर के मिलते हैं, है ना, जिसके हम लोग वॉश करते हैं और चला जाता है, ब्लैक कलर का पाउडर जैसा होता है, अंडरस्टूड। दैट इज एस्परजिलस नाइगर एंड इट इज द सेम फंगस which is used to prepare citric acid, understood? ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, एस्परजिलस नाइगर इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिट्रिक एसिड, अंडरस्टूड, यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। ओके, फिर दूसरी बात करते हैं तो ब्यूट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो ब्यूट्रिक एसिड, अब ये ब्यूट्रिक एसिड होता कहां पर है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, isn't it? तो ब्यूट्रिक एसिड इज देयर इन बटर और उसका सीरियसली बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू है, अंडरस्टूड। एंड दिस ब्यूट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय using bacteria Clostridium butyricum,
Understood? It is used by producing, I mean, it is produced by using bacteria Clostridium utricum, right? Spelling is given in background. तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनिक एसिड है. लैक्टोबैसिलस तो आप जानते ही हो, लैक्टिक टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड. Understood? So there is all different kind of organic acids and different kind of bacteria or fungus which can be used to produce all this kind of organic acid. अब next आ जाता है तो होता है enzymes. Now where these enzymes and how these enzymes are used. तो दांत अच्छे ऐसे बहुत सारी ऐड आती है ना, जिसमें ज्यादातर हम लोग देखते हो कि कॉफी, हल्दी, ये सब होता है, राइट? और कभी-कभी ऑयल, ये स्पाइसेस है ना, ऑयल में मिक्स होता है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ऑयल स्टेन्स. जैसे हल्दी का दाग होता है ना, तो वो हमेशा ऑयल में डिसॉल्व होता है. तो ऑयल हमारे शर्ट पे या हमारे टी शर्ट पे गिरता है या और कोई क्लोथ्स पे गिरता है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू रिमूव दैट काइंड ऑफ स्टेन, राइट? which is oil, which get mixed in the oil, which get dissolved in the oil rather than in water. तो इनके लिए है ना, हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं डिटर्जेंट में, जिसको बोलते हैं लाइपेज. अंडरस्टूड? दिस लाइपेज इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट. और कभी-कभी कुछ डिटर्जेंट में तो प्रोटीएज भी होता है. अंडरस्टूड? टू रिमूव प्रोटीन, लाइक आई मीन स्टेन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. अंडरस्टूड? तो प्रोटीएजेस और लाइपेजेस होता है, or they can remove different kind of stains from our clothes. So there is about how enzymes are used in washing purpose. और भी है कि हम लोग जब भी मार्केट से फ्रूट जूस लेने जाते हैं, तो we want our fruit juice to be very much cleared, है ना, उसमें बीच में पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, है ना. हम लोग बहुत प्रोसेस्ड चीजें मांगते हैं, नॉट चीज, वो खाने का चीज वाला चीज की बात नहीं कर रहा हूँ. हम लोग we want processed things from the market, like processed juice, जिसमें बीच में कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ना. Obviously it is not filtered, but it is filtered. Obviously it is filtered, but it is also treated with enzyme like pectinases and proteases. Understood? तो वो क्या करता है कि जो भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, उनको डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, which can get dissolved in the water to make true solution instead of colloidal or suspension solution. अगर particles छोटे-छोटे बड़े-बड़े होते हैं तो suspension solution बनते हैं, थोड़े छोटे और थोड़े बड़े मतलब बीच का जो रह जाता है तो colloid बनता है, और एकदम छोटे-छोटे बनते हैं and if they get mixed homogeneously in a water, then they prepare true solution. तो अगर एंजाइम से ट्रीट करते हैं और बहुत छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो they will remain within the juice. Understood? And not मतलब filter out नहीं होंगे, and it will provide its flavor in the drink, right? In the juice. तो ये होता है use of enzyme in preparing fruit juices. Understood? In preparing fruit juices which can be marketed, right? Which commercial fruit juices. Understood? Okay, so this is about how enzymes are, and these enzymes are obviously produced by microorganisms. Understood? So this is about how microorganisms are used, for what purpose? For producing enzymes. Understood? हम लोग microorganisms को enzyme produce करने के लिए भी हम लोग use करते हैं. Now next thing is bioactive molecule. What are the chemicals which are there in as bioactive molecules are? ये तो यहाँ पर 3 टाइप के केमिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे which are acting as bioactive molecules. First is streptokinase, then cyclosporin A, and last one is statin, right? So these 3 kind of bioactive molecules which are used to produce, which are used as bioactive molecules, and they are produced using microorganisms. Understood? तो चलो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो streptokinase, as its name, it is produced by streptococcus kind of bacteria. तो streptococcus bacteria से ये chemical produce किया जाता है, streptokinase, and this chemical is acting as clot buster. Understood? तो हमारी बुक में ये टर्म यूज किया गया है, myocardial infarction. अंडरस्टूड? अब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है? तो इन्फार्क्शन मतलब क्लॉट. अंडरस्टूड? क्लॉट
और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है भाई हार्ट का वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, तो उसमें ये क्लॉटिंग हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन which can lead to heart attack. Understood? So this clot need to be burst out, and streptokinase are used as clot busters. In fact, they are called as clot busters, which are used to remove these clots or bust these clots, understood, from the particular blood vessel. Understood? तो ये केमिकल ऐसे कुछ नहीं, मतलब दिस केमिकल आर यूज्ड बाय दोस पेशेंट्स, राइट? इट इज गिवन बाय द डॉक्टर्स टू पेशेंट्स टू रिमूव द क्लॉट्स. नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए. नाउ जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है वो लोग में ऐसा होता है कि दे नीड टू सप्रेस देयर इम्यून सिस्टम. इफ दे डोंट, तो उनका इम्यून सिस्टम, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, ऑब्वियसली दैट ऑर्गन इज नॉट देयर ओन, वो किसी और की बॉडी से लिया हुआ है, तो इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज एज फॉरेन ऑर्गन, राइट? उसमें जितने भी टिश्यूज है या उसमें से कोई एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आवर इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन, वो सारे केमिकल को एंटीजन कंसिडर करेगा. इट विल बी अज्यूम्ड एज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो वो पूरा ऑर्गन को रिजेक्ट करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा अंदर, राइट? खत्म कर देगा. तो we need to suppress our immune system when we have this transplanted organ, right? Like kidney or any other organ. Understood? So cyclosporin A can be used as suppressing agent or immunosuppressor. Understood? Which is used by which is produced by microorganism Trichoderma polysporum. Understood? It is produced by fungus. Trichoderma is a fungus, right? आप लोग सोचो कहीं पर ये ट्राइकोडर्मा कहीं पर हम लोग ने पढ़ा है कहीं पर, तो इट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. दिस इज द फंगस which can be used for producing cyclosporin A, immunosuppressor. And last is statin, right? Statin is used to reduce blood cholesterol level. It is used to reduce मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज कॉल्ड स्टैटिन, एंड दिस स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग microorganism Monascus purpureus. Understood? My father is taking a kind of statin. It is called rosuvastatin. Understood? So एक टाइप का स्टैटिन है, 3 टाइप के स्टैटिन मैंने पढ़े हुए हैं, तो इसमें से एक ये rosuvastatin होता है. Understood? My father himself is taking this bioactive chemical as a medicine, obviously prescribed by doctor. अपने से नहीं ले रहा है, ठीक है? तो ये सब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए. So yes, he is having cholesterol in his blood, so he is taking statin. Understood? On regular basis as prescribed by doctor. So it is used to reduce blood cholesterol level. Understood? And it is produced by using microorganism Monascus purpureus. Understood? Name is there in background, so you can learn the name. So this is about different kind of industrial use of microorganisms. Now next topic is sewage treatment plant. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है सीवेज क्या है, ठीक है? तो हमारे घर में से बहुत सारे कुछ चीजें, गंदी चीजें निकलती रहती है, राइट? फ्रॉम थ्रू गटर लाइन. वो ब्लैक कलर का बहुत ही स्टिकी चीज होता है ना, which is containing our feces, urine and all domestic waste which is flowing through liquid. Understood? So that is called sewage. Understood? Now this sewage how to be treated? और ये सीवेज को हम लोग कहीं पर भी ऐसे नहीं डाल सकते. वी आर डंपिंग दिस सीवेज इन वाटर, बट बिफोर डंपिंग वी नीड टू क्लियर इट. वी नीड टू ट्रीट इट, टू क्लियर इट अप टू 80 to 95%, राइट? तो ये 90 to 95% होना चाहिए, राइट? So that our water bodies get cleared, हमारे water bodies clear रहे, हमारे water bodies में pollution इतना सारा ना हो. Otherwise we can add lots of coliform bacteria in our water bodies, natural water bodies. Understood? If we simply add our sewage to the water, understood? तो फिर वो river नहीं रहेगा, वो एक large
सार्वजनिक ड्रेनेज ही बन जाएगा। अंडरस्टूड? इफ वी ऐड हमारा पॉपुलेशन, देखो कोई लिमिटेशन नहीं है हमारा पॉपुलेशन का, ठीक है, तो इतने सारे लोग का फीसिस और यूरिन तो पूरा रिवर ड्रेनेज बन जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो लेट्स सी हाउ दिस सीवेज इज ट्रीटेड। तो दिस सीवेज इज ट्रीटेड इन 2 phases, that is first phase is called primary treatment or it can be called as physical treatment, and second is called secondary treatment or it can be called as biological treatment। तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं कि that is how primary treatment can be done or how physical treatment can be done। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 2 चीजें यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, टू रिमूव ग्रिट फ्रॉम दी और कोर्स पार्टिकल फ्रॉम दी और सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम दी सीवेज। अंडरस्टूड? तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल जितने भी रहेंगे वो सब निकल जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले, इट इज आउट ऑफ अवर सिलेबस, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर है, फिर रॉक का बेड से वाटर को पास किया जाता है। अंडरस्टूड? नॉट बेड ऑफ रॉक, बट बहुत सारे अलग अलग साइज के रॉक्स होते हैं, वो रॉक से वाटर को पास किया जाता है। अंडरस्टूड? सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इन फिजिकल ट्रीटमेंट, राइट? इसमें कुछ केमिकली यहाँ पर प्रोसेस हम लोग नहीं करवाते या बायोलॉजिकली कुछ नहीं करवाते हैं। सो हियर जस्ट वाटर इज filtered and sedimented to remove out coarse particles from the sewage। Understood? I mean sewage has been treated physically। Understood? तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी 2 अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मेन टैंक्स होते हैं। तो सबसे पहले वाला है जो एरेशन टैंक। तो जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट में से इफ्लुएंट मिला है, इफ्लुएंट मतलब व्हाट कम्स आउट फ्रॉम दी physical treatment process or primary treatment process is called effluent of primary treatment। तो जो भी वो effluent आया है, now it is added into the aeration tank। अब aeration tank में क्या होता है? तो aeration tank में air को अंदर भेजा जाता है in the form of bubbles। Understood? इसलिए aeration tank बोलते हैं। फिर इसमें बहुत बड़ा एक एजिटेटर होता है। एजिटेटर का मतलब और कुछ नहीं, पंखा होता है। यू कैन सी डायग्राम हियर, लेकिन यहाँ पर ब्लेड्स वर्टिकल होते हैं। हमारे पंखे में ब्लेड हॉरिजॉन्टल होते हैं, यहाँ पर ब्लेड वर्टिकल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सो दैट द होल ट्रीटेड इफ्लुएंट, whole physically treated effluent is continuously moving within the aeration tank with the air bubble, with the bacteria that is present in this एरेशन टैंक। तो ये एरेशन टैंक में कुछ बैक्टीरिया हम लोग ने ऐड किया हुआ है। अंडरस्टूड? टू ट्रीट इट, टू क्लियर इट अप टू अ लॉट एक्सटेंट। अंडरस्टूड? और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? एक्चुअली यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस का फ्लॉक्स बनते हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली converting complex organic molecule into the simpler forms, तो ये simpler forms में convert हो जाएंगे, तो then water is not that much polluted। Understood? तो यहाँ पर वही किया जाता है। एंड और होता क्या है, ये पूरा एरेशन टैंक में फिर फ्लॉक्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे और there will be lot of bacteria and fungus within this, but yet lot of organic chemical have converted into a simpler form or smaller molecules। Understood? तो यहाँ पर बहुत सारा डाइजेशन होता है। तो this is called एरेशन टैंक। तो ये एरेशन टैंक में ये होता है, ठीक है। और एजिटेटर्स होते हैं जिसके वजह से ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स और एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल इज फ्लोइंग होमोजेनियसली मूविंग होमोजेनियसली इन द एरेशन टैंक। अंडरस्टूड? तो ये होता है एरेशन टैंक पे। अब ये कब तक होने देना? तो यहाँ पर टाइम टू टाइम बीओडी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बीओडी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब होता क्या है यहाँ पर कि पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, कुछ अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन हमेशा होता है, राइट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी में ऑक्सीजन ऐड भी करते हैं, और जब कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पानी में ऐड होता है, नाउ इट इज बायोडिग्रेडेबल, दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिग्रेडिंग दोस केमिकल्स। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये केमिकल्स को डिग्रेड करते हैं तो दे नीड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? दे नीड ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है। तो अगर पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है
तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है. तो दिस डिमांड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज रिक्वायर्ड टू डिग्रेड ऑर्गेनिक केमिकल्स बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स बायोलॉजिकली. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बीओडी. अंडरस्टूड. अब देखो जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा है उतना ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, उतना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए. अंडरस्टूड. तो अगर ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा है तो देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, तो देयर विल बी मोर बीओडी. अंडरस्टूड. तो बीओडी इंक्रीज हो जाएगा, मोर तो नहीं बोल सकते लेकिन बीओडी विल गेट इंक्रीज, एंड इफ दिस वेस्ट इज लेसर देन बीओडी विल बी लेसर. अगेन डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ अगर कंपेयर करें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इंक्रीज और इफ इट इज हायर देन बीओडी विल गेट डिक्रीज. है ना, आपके पास 5 चॉकलेट होगी और आपको 10 चॉकलेट चाहिए तो आप चॉकलेट मांगोगे, लेकिन आपके पास 15 चॉकलेट होगी तो आप चॉकलेट नहीं मांगोगे, आपकी चॉकलेट की डिमांड कम हो जाएगी. तो यहां पर भी वही है, डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो बीओडी कम है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है तो बीओडी ज्यादा है. सो इन शॉर्ट इट इज अ रिक्वायरमेंट. बीओडी इज डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं बीओडी को लेके. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि बीओडी इज नॉट एक्चुअली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज नेसेसिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन अगर कम है तो बीओडी ज्यादा होगा. अंडरस्टूड. और डीओ ज्यादा है तो बीओडी कम होता है, और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ज्यादा है पानी में तो बीओडी भी ज्यादा है, और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कम है तो बीओडी भी कम है. अंडरस्टूड. सो दिस इज अबाउट बीओडी. तो यहां पर भी बीओडी चेक किया जाता है. तो बीओडी जैसे ड्रॉप होता है, when BOD drops in this water, जो वाटर ट्रीट हो रहा है वो वाटर में जैसे बीओडी ड्रॉप होगा तो यहाँ पर ये एरेशन टैंक का काम हो गया. अंडरस्टूड. योर सीवेज इज ट्रीटेड. अंडरस्टूड. एक कंसिडरेबली इसका एक यूनिट होता है, एक पर्टिकुलर मेजर होता है, कैलकुलेशन से मिलता है. तो ये अगर बीओडी रिड्यूस हुआ अच्छा सा अमाउंट में तो दैट मीन्स this toxic chemical, or large organic chemical have reduced in much higher amount. तो ये बीओडी के बारे में हो गया. अब यहाँ पर बीओडी मान लो चलो कम हो गया, मान लो नहीं, हर बार होता ही है. बीओडी कम हो गया. अब बीओडी कम हो गया ना तो क्या करेंगे कि this treated water is then passed into settling tank. तो ये एरेशन टैंक का यहाँ पर काम खत्म हो गया. अब सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे इसको. ठीक है, अब सेटलिंग टैंक में जो ले गए हैं उसमें क्या है, क्लियर्ड वाटर है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है. फ्लॉक्स आर देयर. अंडरस्टूड. तो जैसे दही बनाने के लिए मम्मी लोग क्या करते हैं कि दही में से 1 चम्मच दही लेके दूध में डाल देते हैं ना, तो यहां पर भी जो चीज सेडिमेंटेशन टैंक में गया या सेटलिंग टैंक में गया है वहां से थोड़ा सा फ्लॉक्स ले लेंगे और ये फ्लॉक्स को हम लोग वापस एरेशन टैंक में डाल देंगे, ताकि जब फिजिकली ट्रीटेड वाटर जिसका फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया सीवेज का, वो जब उसका इफ्लुएंट जब आ रहा हो तो उसमें भी फ्लॉक्स चाहिए ना, तो दिस फ्लॉक्स कैन बी एडेड. अब ये फ्लॉक्स एक्चुअली बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएटेड फॉर्म होता है. अंडरस्टूड. इट इज एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस. तो ये this flux is taken as inoculum from settling tank to aeration tank. फिर यहाँ पर settling tank में अब क्या होगा, तो अब ये settling tank में ऐसा होगा कि देखो आपने कभी कभी मूवी में ऐसा देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बोल दिया भाई चलो आज आप तुमको ये स्टेट के सीएम का मर्डर करना है. ठीक है, तो वो स्नाइपर लेके खड़ा हो गया सीएम का मर्डर करने के लिए, और उसने उस स्नाइपर को सीएम को शूट भी कर दिया. सीएम बेचारा मर भी गया, और जैसे वो मर गया पता चलता है कि उसको स्नाइपर को खत्म करने के लिए एक दूसरा स्नाइपर दूसरे बिल्डिंग में है. अंडरस्टूड. तो कोई सबूत ही ना बचे कि भाई सीएम को किसने मारा. अब उसको पकड़ लेंगे तो किसने खून करवाया ये भी पता चल जाएगा. तो ये पता ना चले इसलिए स्नाइपर के लिए भी दूसरा वाला स्नाइपर एक बैठा होता है ना. तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करते हैं.
तो जो बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग ने पानी में से बीओडी को डिक्रीज किया, सीवेज में से, फिजिकली ट्रीटेड सीवेज में से बीओडी को डिक्रीज किया, वही फ्लॉक्स का यहाँ पर हम लोग डाइजेशन करवाएंगे यूजिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब सेटलिंग टैंक में होता क्या है सबसे पहले तो देखो, जो हम लोग इफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में लाए एरेशन टैंक में से, सबसे पहले उसमें से तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है सब नीचे आ जाएंगे। फिर इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया हम लोग डालते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देता है, राइट, इट विल डाइजेस्ट फ्लॉक्स। तो जो बेचारे बैक्टीरिया फंगस है वो सारे मर जाएंगे। यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है, अंडरस्टूड, जो वहां पर एरेशन बबलिंग में से मिलता था यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एनारोबिक बैक्टीरिया तो क्या है, बिना ऑक्सीजन ही जीते हैं, तो दे कैन डाइजेस्ट दिस फ्लॉक्स कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंगस। और यहाँ पर बेचारे वो एरोबिक वाले मर जाएंगे, एरोबिक माइक्रोसोम्स वाले मर जाएंगे, कंज्यूम्ड हो जाएंगे इनफैक्ट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। और यहाँ पर एक मतलब जो यहाँ पर सेडिमेंटेड मिलता है, सेडिमेंटेड थिंग मिलता है, उसको स्लज बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो ये एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग फिर फर्टिलाइजर बनाने के लिए ले लेते। we are taking out this for making fertilizers, understood। अब ये जो पूरा टैंक है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आया था वो स्लज जैसा आया था और यहाँ पर उसका डाइजेशन हो रहा है फ्लॉक्स का, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर पानी बहुत क्लियर हो जाता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% क्लियर हो जाता है, एंड बीओडी भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हुआ है। सो दिस वाटर कैन बी एडेड इन दी नेचुरल वाटर बॉडीज, अंडरस्टूड। क्लोरिनेशन भी किया जाता है, क्लोरिनेशन इज नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, बट यस क्लोरिनेशन भी किया जाता है, एंड देन दे आर एडेड इन दी वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स और रिवर्स, मेनली रिवर्स, राइट। ओके, सो दिस अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में और भी एक चीज है कि यहाँ पर कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, अंडरस्टूड। तो ये सब गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी, एज एन एनर्जी सोर्स, ओके, एज अ फ्यूल। पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है। ऑब्वियसली चाहिए, हमारा पॉपुलेशन इतना सारा है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन इतना ओवर पॉपुलेटेड है कि एक्चुअली आई हैव यूज्ड इन रॉन्ग ग्रामर, लेकिन हम लोग इतना ओवर पॉपुलेटेड है कि जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट मच वेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है जिसके थ्रू हमारा पूरा जितना भी पॉपुलेशन है सभी का डोमेस्टिक वेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर पाए। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड एंड दे आर एडेड इन रिवर्स। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि पूरा रिवर ड्रेनेज बन जाता है, तो यस इट इज, यमुना ऐसा ही कुछ है, अंडरस्टूड। आफ्टर दिल्ली यमुना इज समथिंग लाइक दैट ओनली। तो हमारे इंडिया में दो प्लान है, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, लेकिन वी डोंट वांट टू पे फुल टैक्सेस, neither our political leaders can get rid of corruption। तो corruption हम लोग सब में है, in each and every individual among Indians, understood, except few people। तो ये सब तो रहेगा ही हमारे कंट्री में, अंडरस्टूड। सो दिस अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है, तो सबसे पहले बायोगैस प्लांट का हम लोग यहाँ पर डायग्राम बैकग्राउंड में आप देख लो कि क्या क्या है। आप लोग में से अगर कोई रूरल एरिया में रहता है या कोई कुछ टाइम स्पेंड किया होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि हाउ बायोगैस प्लांट इज देयर। तो एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, और अंडरग्राउंड में एक पिट होता है, क्लोज्ड कॉन्क्रीटेड पिट होता है,
जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है, दैट लीड इज मूवेबल, अंडरस्टूड, वो वर्टिकली मूवेबल होता है। तो इनलेट से जो भी अगर गोबर गैस प्लांट है तो उसमें सिर्फ काउ डंग डाला जाता है, बट इफ इट इज बायोगैस प्लांट तो उसमें फिर वेजिटेबल आई मीन किचन वेस्ट भी उसमें डालते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स है, लेकिन पॉलीथीन के साथ नहीं डालते। हाँ, सो वेजिटेबल पील्स एंड ये सब डालते हैं, अंडरस्टूड। जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, वो सब चीजें डालते हैं। और काउ डंग और जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ है, तो उनके इंटेस्टाइन, उनके एलिमेंट्री कैनल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड मीथेनोजेंस, they are having capacity to produce methane gas, so they comes out with cow dung। और ये काउ डंग जब किचन वेस्ट या सिर्फ काउ डंग जब जाता है ये बायोगैस प्लांट के चैम्बर में, राइट, कंपोस्ट मतलब कंक्रीट पिट में जाता है, तो देयर it is been digested by methanogens। These all matter, organic matter which is present in the waste, in the cow dung, in kitchen waste, is digested by methanogens, and they are producing methane gas, then they are producing carbon dioxide, hydrogen sulfide, right? तो ये सारे गैस प्रोड्यूस होते हैं, और गैसेस जब प्रोड्यूस होते हैं तो इट क्रिएट्स प्रेशर अबाउट द होल स्लरी, जो पूरा अंदर स्लरी है उसके ऊपर गैस का एक पूरा चैम्बर जैसा होता है। जो गैस जैसे जैसे वहां पर प्रेशर बिल्ड होता है, वो लीड जो मैंने बोला था ना कि इट इज मूवेबल वर्टिकली, तो वो लीड अपवर्ड साइड में मूव होता है, अंडरस्टूड। जब वो एक सर्टेन लेवल क्रॉस करता है ना, तो पता चल जाता है कि चलो गैस, इनफ गैस इज देयर, अंडरस्टूड। तो दैट गैस कैन बी कलेक्टेड और कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। तो रूरल एरियाज में जो लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं वो लोग इस टाइप का बायोगैस प्लांट यूज करते हैं, और गोबर गैस प्लांट दे आर यूजिंग, अंडरस्टूड। जब पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर, जब पूरा डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, तो whatever slurry is there, whatever digested slurry is there, that can be used as manure or to produce fertilizer, understood। तो देखो ये ऐसा हो गया ना, वेस्ट फ्रॉम आई मीन बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, अंडरस्टूड। तो इसी टाइप का कुछ है यहाँ पर। So biogas plant can be used for very good purpose, and I mean to produce fuel and manure or fertilizer from cow dung or kitchen waste, understood। So this is about biogas plant। और बायोगैस प्लांट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट अप करने के लिए दो इंस्टीट्यूट्स है, राइट। दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर बैकग्राउंड में उनके नाम लिखा हुआ है, अंडरस्टूड। So you have to learn this name name of this institutes, और बायोगैस प्लांट का क्या प्रिंसिपल है, कैसे बायोगैस प्लांट में क्या होता है, everything you need to learn, understood। So this is about biogas plant। Next is microbes as biocontrol agent, right। तो biocontrol agent का मतलब ये होता है कि to limit population of certain organism or to eradicate population of certain organism, right। यहाँ पर eradication नहीं आएगा, यहाँ पर limit आएगा, right। When we in our agricultural land or farmland where crops are been growing, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, so to limit the population or more exactly to eradicate the population of those organisms which are damaging our crops, right, which is ruining our crops। तो वो सारे insects और pests को हम लोग वहां से eradicate करने का try करते हैं by using this insecticides or pesticides। But this chemicals also comes in our food while using this, right, and they are having huge toxicity, understood। So हमारे body में chronically ये हमारे खाने में आते हैं और हम लोग रोज खाना खाते हैं, so this goes add up in our body chronically and it damage। अब हमारे बॉडी में ये कलेक्ट होते रहता है, राइट, एंड इट कैन हैव अ ह्यूज क्रॉनिक इफेक्ट इन आवर बॉडी, इट कैन लीड टू कैंसर और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं इन विच वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, देन आवर क्रॉप्स विल बी वेरी मच ससेप्टेबल टू गेट डैमेज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली limiting the population instead of eradicating population of this pests or insects which are
damaging our crops, we are limiting population of them. Yes, obviously limiting करना मतलब कुछ loss हम लोग को तो होने वाला है crops में, but वो loss भी कुछ limited रहेगा, right? And we are not adding chemicals to this food, so this food is just devoid of this harmful chemicals like which we call as insecticides or pesticides, right? So इसको भी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो they can be controlled by predation or parasitism, right? So there are certain organisms which are predators to this kind of pests or insects, and there are some organisms which are parasitic for this kind of insects or pests damaging our crops. So we can use these organisms in our farmland or agricultural land so that we can reduce the population of this pests or insects which are damaging our crops to a certain extent, to a certain good extent, right? अच्छा ऐसा कम हो जाएगा वो लोगों का population. तो यहाँ पर this kind of organisms can be used, right? Which are predators to or parasitic to those pests or insects जो हमारे crops को damage कर रहे हैं. तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं. फिर कुछ यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, जैसे एक बीटल है which is having red and black marking on it. Understood? It is called ladybird, which is actually having predatory effect on or which is controlling the population of aphids. And और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं dragonfly. Yes, dragonfly. This dragonfly is also helping in limiting population of mosquitoes and so to limit the occurrence of diseases like malaria, filariasis, and so on, which is spreaded by or transmitted by mosquitoes, right? So this bug controlling agent we don't use only for agriculture, but we can use for some other things also to reduce these vectors also, disease transmitting vectors. Understood? जैसे यहाँ पर mosquitoes को कम करने के लिए यूज किया. फिर we can use Bacillus thuringiensis bacteria also. This bacteria is producing a crystalline protein, right? It is producing a crystalline protein which can which is toxic to certain kind of insects. Lepidopteran type के insects हैं, उनके लिए toxic है. जो caterpillars होते हैं जो लीफ को मतलब कंज्यूम करके प्लांट को खत्म कर देते हैं, this caterpillars can get die of this protein. Understood? Can get that die नहीं मतलब वो मरी जाते हैं प्रोटीन खा के. This protein is very toxic to them, while this protein is non-toxic to larger organisms like amphibians, reptiles, mammals like us, eels और भी सारे mammals. मतलब ये सब animals को इनफेक्ट कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, but they are affecting a particular kind of insects. Lepidopterans है, फिर और एक dipterans है और एक ऑर्डर है. 3 ऑर्डर्स है टोटल. तो ये 3 टाइप के इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं, right? They kill this protein are having crystalline protein are having potentiality or toxicity to this 3 kind of disorders, orders of the insect class. Understood? और क्या है ये बीटी जो ये Bacillus thuringiensis का प्रोटीन है और टॉक्सिक है. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ सैशेट. तो सैशेट में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. दीज स्पोर्स आर मिक्स्ड विद द वाटर एंड दिस सॉल्यूशन इज स्प्रेड ऑन द ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. मतलब जहां जहां पर हम लोग को लगता है कि भाई यहाँ पर कैटरपिलर्स आ सकते हैं, खा सकते हैं, तो वो सब में स्प्रे कर देते हैं. Understood? So that our plant get protected from those kind of insects. Understood? And it is completely intoxic to us or larger animals. Understood? और फिर अगर दूसरे अभी और भी है बीटी ये Bacillus thuringiensis में we have produced BT corn plants, right? Using genetic engineering. जो 12th स्टैंडर्ड में अभी मैंने लास्ट में वीडियो बनाया ना कि हम लोग कैसे कैसे चीजें बनाते हैं, तो उसमें से एक चीज है ये बीटी कॉटन प्लांट. अंडरस्टूड? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके जो जीन ये बैक्टीरिया में है, Bacillus thuringiensis में बैक्टीरिया में है, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया ये केमिकल प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, वही जीन हम लोग ने ट्रांसफर किया प्लांट में. तो नाउ दिस प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस दिस टॉक्सिक केमिकल बाय इट्स ओन.
तो जैसे कैटरपिलर वो लीफ को खाने जाएगा, लीफ को खाते ही मर जाएगा. अंडरस्टूड? So no need to spray, just need to buy this kind of seeds and sow them on your soil, and when caterpillar will try to eat this leaf, they'll die automatically. Understood? So this is BT cotton produced by genetic engineering. Understood? And now it is available in market. People are knowing about it, those especially those who are farmer. Understood? अभी तो BT कॉटन में नहीं है, सिर्फ कॉर्न में है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट में ये जीन इनकॉर्पोरेटेड है. अंडरस्टूड? सो इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा. ये फिर से देखो ट्राइकोडर्मा आया. ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं कि विच काइंड ऑफ फंगस इज ट्राइकोडर्मा. आपके ऑप्शन है फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड ड्यूटेरोमाइसिस. अंडरस्टूड? ये चार टाइप के तो फंगस है, चार टाइप के फंगस आपके ऑप्शन है. Now, which kind of fungus is trichoderma? Understood? That you need to answer in the comment below. Understood? मैं देखूंगा कि किसने किसने आंसर दिया है, किसको किसको आता है. Understood? I will check that. Okay, चलो next. तो ये trichoderma is a kind of fungus which is helpful in helping in plant pathogens जो कुछ होते हैं. They are free living fungus and they are helping in removing this plant pathogen or to fight with plant pathogen which are pathogenic to plants. Understood? This trichoderma can be used for such purpose. और next है एक baculovirus. Understood? It is a kind of nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus. Understood? Depending on the shape, polyhedral shape. So nucleopolyhedrovirus, it is a kind of nucleopolyhedrovirus. Now this baculovirus is actually killing some arthropods and insects. So they are having a narrow spectrum to kill pest kind of or those pests or insects which are damaging our crops. Only those kind of insects, right? तो एक उसका narrow spectrum है कि भाई ये टाइप का insects और pests को मारता है और किसको नहीं मारता है. Understood? So these baculoviruses can be widely used. In fact, it can be used in integrated pest management program. Understood? Integrated pest management program मतलब अगर जैसे एक baculovirus ले लिया, कोई narrow spectrum के microorganisms को मारने के लिए और भी 2-3 हम लोग ले सकते हैं. तो यहाँ पर कोई भी देखो, यहाँ पर सारे बायो कंट्रोल एजेंट लेके हम लोग कोई जो सब पेस्ट्स है, इंसेक्ट है जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकता है, सिर्फ उन्हीं को मारेंगे. राइट? नो अदर इंसेक्ट्स और पेस्ट विल बी किल्ड बिकॉज इंसेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है पॉलिनेशन, विदाउट विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कांट बी पॉसिबल. तो ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सारे इंसेक्ट्स ना मर जाए. अंडरस्टूड? दोस ओनली हु आर डैमेजिंग आवर क्रॉप्स, व्हिच आर डैमेजिंग आवर क्रॉप्स, they must be killed, not the other insects or any organism. So this is how biocontrol agents are better option than the chemicals. Understood? Like pesticides and insecticides. So this is our biocontrol agent. Now next topic is microbes as biofertilizers, right? Now चलो fertilizers तो हम लोग जानते हैं, chemical fertilizers are there available in the market, right? और manures भी है, right? लेकिन chemical fertilizers में problem क्या है? तो problem ये है कि they should be added in proper amount. अगर थोड़ा भी ज्यादा हम लोग ने दे दिया तो soil का acidity या basicity बढ़ सकता है, right? So we should know first how much amount of nutrient, how much amount of nitrate is there before adding nitrate in this soil. तो ये इसका कुछ estimation हम लोग के पास होना चाहिए. If we have not tested it, at least हमारे पास कुछ estimation होना चाहिए. ठीक है? जो farmers लोग estimate करते हैं, भाई last year मैंने डाला था और मैंने ये crop किया था तो अभी थोड़ा तो होगा, मतलब ये एक overall estimation होता है. तो at least this thing is needed. तो ये कभी करेक्ट भी होता है, कभी मिस्टेक्स भी इसमें होते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एक्सपेंसिव. बहुत सारा फर्टिलाइजर डालना पड़ता है सॉइल में एंड दे आर रेडीली एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, तो दे गेट यूज्ड अप वेरी अर्लियर. तो खत्म हो जाता है जल्दी से, एग्जॉस्ट भी हो जाता है सॉइल में से, राइट?
सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें कुछ ऐसा सोर्स चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो प्लांट के लिए रेडिली अवेल भी हो. मैन्योर में रेडिली अवेल नहीं होता है, तो प्लांट के लिए रेडिली एटलीस्ट ना हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, एंड इट शुड नॉट बी दैट मच एक्सपेंसिव. So this makes lot of farmer to turn towards biofertilizer rather than chemical fertilizers, right? तो ये biofertilizers में क्या क्या चीज होती है? It doesn't include only manures, but it includes certain microorganisms, right? अब आपने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में सुना ही है. आप कोई भी आप बाजार में जाओ, मेथी के प्लांट लेके आओ, उसके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं. तो these root nodules are having this bacteria, right? They are called rhizobium bacteria, जो leguminous plant होते हैं, जैसे गुजराती में दाल कठोर बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में sprouts बोलते हैं, pulses बोलते हैं, right? All these plants which are producing sprouts or pulses are actually belongs to leguminous plant, right? Including fenugreek. अभी जो मेथी की बात की ना मैंने, that one. So these all plants are having the root nodules in their roots. And these root nodules are containing bacteria which is called rhizobium. ये rhizobium bacteria क्या करता है? तो ये rhizobium bacteria nitrogen fixing करता है. They are fixing nitrogen from the air in the ammonium salt so that plant can absorb ammonium and can use it to prepare amino acids. और इसीलिए मेथी में, pulses में, sprouts में प्रोटीन ज्यादा होता है, because protein are polymers of amino acids. Every amino acids require an amino group. Understood? तो नाइट्रोजन ज्यादा तो अमीनो एसिड ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा. Understood? If nitrogen is lesser, amino acid is lesser, protein is lesser. Understood? So that's how it works. तो देखो, सोचो सीरियल में क्यों इतना प्रोटीन्स नहीं है, फ्रूट्स में इतना प्रोटीन्स क्यों नहीं है, लेकिन ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के सीड्स में इतना प्रोटीन्स क्यों है. नाउ यू गॉट इट, आई थिंक. अंडरस्टूड? तो दैट इज बिकॉज दे आर हैविंग स्पेशलाइज्ड रूट नोड्यूल्स इन व्हिच नाइट्रोजन इज बीन फिक्स्ड. अंडरस्टूड? तो ये जब बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में, उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं, दे आर डायरेक्टली एडिंग दिस नाइट्रोजन सॉल्ट्स इन द प्लांट बॉडी, राइट? एंड इन टर्न दे आर गेटिंग सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, दे आर फ्री लिविंग बट स्टिल दे आर एडिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, लाइक एजोटोबैक्टर, Azospirillum, right? These are the bacteria, these are the microorganisms which are adding nitrogen salt in the soil, and this soil can be absorbed by the plant. Understood? So this is how nitrogen is being added by different kind of microorganisms. Now talking about some other microorganisms like Glomus species, which is forming mycorrhizal association with the Pinus type of plant, right? This plant is producing, during the germination of seed only, when Pinus type of plant seed is being germinated, during that time only they are forming an obligate relation with the this fungus, some of the Glomus species, right? Now obligate relation का मतलब क्या है? Compulsory relation, मतलब कि without seed cannot germinate properly even without this fungus. So they are very much dependent on that fungus to absorb more amount of water, phosphorus and other minerals. Understood? तो ये सब चीजों के लिए ये Pinus type के plants होते हैं ना, right from their germination they are highly dependent on this kind of fungus, right? They are highly dependent on mycorrhiza, and in return mycorrhiza is again getting carbohydrates, right? Simple sugars for their own energy. Understood? तो ये relation होता है. This is also kind of symbiotic, this is also a symbiotic relation between some of the gymnosperms and Glomus species type of fungus. Understood? और सिर्फ ये नहीं है कि water और this minerals are provided to the plant, but in fact they are making plant more resistant to plant pathogens. They are helping in drought. They are providing resistance to drought, salinity. Understood? तो ये सब चीजें भी provide करता है, and it is helping in growth of the plant also. Understood? Enhancing plant growth. So mycorrhiza is really very important for this kind of plant. Understood? Okay. Now next one is cyanobacteria. Now some of the cyanobacteria like Nostoc, Enamoeba and Oscillatoria.
तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, चलो। नॉस्टॉक एनेबेना में एक स्ट्रक्चर होता है, आई वांट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इन द कमेंट्स, ओके। ये स्ट्रक्चर में स्पेशली नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। What is name of the structure? You have studied this in 11th standard. Understood? So I want name of the structure in the comment. Understood? तो they are having certain structure through which they are, मतलब एक टाइप का सेल होता है specialized for nitrogen fixing. Understood? तो नाइट्रोजन फिक्स करता है, दिस काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइट। इवन जो पैडीफील्ड्स होते हैं, पैडीफील्ड मतलब जो राइस प्लांट जहां पर उसका फार्मिंग किया जाता है, तो वहां पर तो बेसिन इरिगेशन होता है, पूरा फार्म को एक शैलो पॉन्ड जैसा बना दिया होता है, इतना पानी होता है लगभग, राइट। तो वहां पर दिस काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू ऐड नाइट्रोजन इन द सॉइल, अंडरस्टूड। और देयर आर सेवरल अदर प्लेस, आई मीन और भी इसको फार्मिंग में अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो ऐड नाइट्रोजन इन दी सॉइल टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। सो दिस इज अबाउट माइक्रोब्स फॉर एज or for fertilizing or as biofertilizers. So this is about microbes for human welfare. So here we have end the chapter. Meet you in the next video.